Good morning, everyone. Today we'll be doing this chapter, Aneha's Alarm Clock. I hope everybody has already opened the book and you have your pencils also with you, right? Okay. So now before we begin this chapter, first question is for all of you. How many of you use alarm clock to wake up in the morning? Raise your hands. How many of you use an alarm clock to wake up in the morning? Nobody? Nobody uses? So who's your alarm clock then? Your mama? Hannah, your mama is your alarm clock? She helps you to get up in the morning? Mankaran, who helps you then? You don't use an alarm clock, you don't use your mama doesn't helps you then? Ma'am, my little sister always wakes me up. Wow, that's a unique alarm clock you're having. So his younger sister Ma'am, helps. because she is a baby. Yeah, with the screams of the baby. Very good. Okay, so most of us actually use an alarm clock to get up in the morning. है ना? ऐसा होता है ना? Otherwise, because we are grown up, we are using alarm clocks. और आप लोग usually सारे बच्चों के alarm clock कौन है? उनकी मम्मा है, because वो लोग उनको उठाते हैं, right? So next question is, how many of you actually like to get up in the morning early? How many of you are early risers? कितने बच्चे जल्दी उठते हैं? Very nice, very good. That's nice. Okay, nice. Now, let us start and let us see whether the girl in the chapter, Neha, what is she like? Like, she does not like to get up early in the morning. So let us see how does she get up. उसे अच्छा नहीं लगता सुबह जल्दी उठना, लेकिन अब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे उठती है फिर. So the name of the chapter that we have is Neha's Alarm Clock. Okay. Now, if you can see here, the first word that is written is narrator. Now, can anybody tell me whom do we call a narrator? Who's a narrator? Narrator word का meaning होता है Alarm clock. narrator. Okay, can you tell me what is narrate करना? To narrate something. Ma'am, storyteller. Yes, very good. The person who narrates something, narrate करने का मतलब होता है describe करना या कुछ बताना या सुनाना. Like if I am telling you a story, अगर मैं आपको story सुना रही हूँ, तो उसको आप बोल सकते हैं that I am narrating you a story. उसे बोलते हैं नरेट करना. और जो पर्सन बोल रहा है, जो आपको सुना रहा है, नरेट कर रहा है, उस पर्सन को हम बोलते हैं नरेटर. ओके, सो ये जो चैप्टर है हमारा, ये डायलॉग्स की फॉर्म में है. डायलॉग्स क्या होते हैं? जो मैंने बोला वो मेरा डायलॉग है, जो आप बोलेंगे वो आपका डायलॉग है. जब आप प्ले देखते हैं, कोई स्किट देखते हैं, उसमें अलग अलग पर्सन अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डायलॉग्स. तो ये जो चैप्टर है हमारा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. और नरेटर का जो आता है, जहाँ पे भी लिखा आएगा वर्ड नरेटर, दैट मीन्स कि ये वो पर्सन है जो पूरी स्टोरी सुना रहा है. राइट, सो लेट अस स्टार्ट. Please, eyes on your books, those who are having the books. Narrator क्या बोल रहा है? Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face covering her ears with a pillow. Snuggles under the warm blanket. But she knows she has to get up. She mutters to herself. Okay, now stop reading and listen to me. अब नरेटर जो है, जो स्टोरी सुना रहा है, वो क्या बता रहा है कि मॉर्निंग हुई है और सुबह क्या बजा, कोई रिंग 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 की साउंड आ रही है. और ये साउंड किस चीज की है? ऑफ कोर्स ये किसकी है? अलार्म क्लॉक की है. यस. Now, अब alarm clock off goes the alarm clock at 6 in the morning. और alarm clock कितने बजे बजा है? कितने बजे वो रिंग कर रहा है? कितने बजे का alarm clock लगा हुआ है? It is at 6 in the morning. Neha makes a face. So that is what we all do. जब भी सुबह morning में alarm clock बजता है ना, तो मैं भी first thing जो करती हूँ ना, फेस बनाती हूँ. सुबह हो गई, अब उठना पड़ेगा. राइट, तो आप सबको भी जब मम्मा उठाती हैं तो आप लोग भी एक बार तो फेस बनाते हो. मम्मा नहीं बनाते हैं ना फेस. सो दिस इज फेस बनाना, मतलब कि दुखी होना बहुत ज्यादा कि अब उठना पड़ेगा. सो नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद द पिलो. और वो अपने पिलो लेके अपने ईयर्स जो है उस पिलो से कवर कर लेती है. व्हाई शी इज कवरिंग? सो दैट शी डज नॉट हियर द साउंड ऑफ द अलार्म क्लॉक, ताकि उसके कानों में अलार्म क्लॉक की आवाज नहीं आए. इसलिए वो उसने क्या किया, पिलो से अपना, इफ यू कैन सी दैट इन द पिक्चर ऑल्सो दैट इज गिवन हियर. अगर आप पिक्चर में देखोगे तो वो अपने पिलो से अपने ईयर्स कवर कर रही है ताकि कानों में अलार्म की आवाज ना जाए, बिकॉज शी डज नॉट वांट टू गेट अप. आगे वो कह रहा है स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. कैन एनीबॉडी टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्नगल्स? Okay. Ma'am,
Bhumi, you want to tell me? Ma'am, nap. Yes, Bhumi. Ma'am, nap. Sorry, Bhumi, I'm not able to listen to you. Ma'am, nap lena. Nap लेना? I'll tell you, स्नगल करना होता है, आपने रियलाइज किया जब आपको नींद आई हुई है तो आप अपनी बॉडी को ब्लैंकेट के अंदर या शीट, आपने जो भी ऊपर कवर शीट ली हुई है उसके अंदर अपनी बॉडी को ऐसे क्लोज कर लेते हैं, खुद को हक करते रहते हैं. सो Excuse me, स्नगल मैम, हमें अंडरलाइन पिलो, जो पिलो के आगे वर्ड है वो करना है. that is your wish, otherwise yes, Hanshi, you can underline and you can write down the meanings. So it means to lie in a very comfortable position. lie means लेटे हो ना ऐसी position में कि आप बहुत comfortable feel कर रहे हैं, ठीक है? To get into a position that makes you safe, warm and comfortable. यूजुअली आप अपनी मम्मा, जैसे मम्मा साथ लेती है तो मम्मा को भी हक कर लेते हैं ना, ठीक है? अगर कोई नहीं है, आप अकेले लेते हैं तो आप अपने आप को ऐसे हक करते रहते हैं, अपनी बॉडी को क्लोज लाते रहते हैं अपनी, सो दैट यू फील कंफर्टेबल. तो उसे बोलते हैं स्नगल करना. सो स्नगल्स अंडर हर वार्म ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट के अंदर के नीचे स्नगल करती है खुद से, बट शी नोज शी हैज टू गेट अप. लेकिन पता तो है कि जितना मर्जी स्नगल कर लो, जितना मर्जी ईयर्स पे पिलो रख लो, अल्टीमेटली आपको उठना तो पड़ेगा ही, है ना, फॉर योर नेक्स्ट डे. शी mutters to herself. Now underline the word mutters. Mutters. Mutter करना. Can anybody tell me what is muttering? Mankaran. Ma'am, the word mutter means a way of speaking something very slowly and being frustrated. वेरी लो वॉइस, इतनी धीरे बात करना कि किसी को सुनाई नहीं दे. आपको कई बार गुस्सा आता है, मम्मा डांटती हैं तो आप क्या करते हैं? अपने मुंह में बोलते रहते हैं, मुझे डांटते रहते हैं, लेकिन आप धीरे बोलते हैं ताकि मम्मा को सुनाई नहीं दे, ऐसे बोलते हैं ना. सो दैट वॉइस, टू स्पीक इन अ लो वॉइस. यू कैन राइट डाउन द मीनिंग. टू स्पीक इन अ LOW, low voice, VOICE voice. Okay. All right. Should we move further? Now, the first dialogue that we have, जो पहला dialogue आ रहा है, that is of Neha. Neha क्या कह रही है? Now, please look in your books, everybody. Ashmi, please read yourself. Neha क्या कह रही है? This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. अब नेहा कह रही है कि ये अलार्म क्लॉक रोज 6 बजे बज पड़ता है और मुझे बेड से बाहर निकाल देता है. क्यों बाहर निकालता है? कैसे बाहर निकालता है? उसको खींचता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अब अलार्म क्लॉक बज गया है, अब अलार्म क्लॉक की रिंग हो चुकी है, तो आई हैव टू गेट अप. इट्स सो अनफेयर. व्हाट इज अनफेयर? व्हाट इज अनफेयर? अगेन मनकरन, यू कैन ट्राई. अनफेयर बोलते हैं, ये तो बहुत अनफेयर, आप गेम खेल रहे होते तभी आप बोलते हैं दिस इज नॉट फेयर. बोलते हैं ना दिस इज नॉट फेयर. कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस इज नॉट फेयर वर्ड? Excuse me, ma'am. यस. Ma'am, can I? वेट अभी. इसका मतलब है ये नहीं है. It is not Unfair means this is not fair, means जो बात ठीक नहीं है, जो बात गलत है. अगर कोई बात गलत होती है तो आप बोलते हैं दिस इज नॉट फेयर, तो उसको आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज अनफेयर. ठीक है. अनफेयर मीन्स द थिंग इज नॉट करेक्ट, जो काम ठीक नहीं है उसको बोलते हैं अनफेयर होना. ठीक है. सो इट्स सो अनफेयर. यस बेटे. Excuse me, ma'am. Ma'am, snuggles का मतलब क्या है? Snuggle is to lie down in a comfortable position. Okay, so it's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. कितना मुझे अच्छा लगता है और मुझे कितना पसंद है. मैम, अनफेयर को हम अंडरलाइन कर सकते हैं. प्लीज बेटे. तो वो कह रही है कि कितना पसंद है कि मैं देर तक मॉर्निंग में सोऊं. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम. वो कह रही है कि मैं ये विश मीन्स मेरी इच्छा है, ये मैं ये चाहती हूँ. क्या चाहती हूँ मैं ये चाहती हूँ कि कभी तो ऐसा हो कि अलार्म क्लॉक अपना काम करना भूल जाए. काम करना भूल जाए मतलब कि वो मॉर्निंग में 6 o'clock रिंग नहीं करे. ऐसा होगा कभी? ऐसा होगा कि अलार्म क्लॉक भूल जाए कि मैंने तो बजना था? हो सकता है ऐसे? कैसे हो सकता है?
अगर बैटरी से चलने वाली क्लॉक और उसकी बैटरी खत्म हो जाए तो हो सकता है वो नहीं बजे, है ना? ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज फ्रॉम द नरेटर. नरेटर क्या कह रहा है? समथिंग फॉल्स. उसी टाइम कुछ गिरता है. क्या गिरता है? एंड नेहा स्माइल्स. कुछ गिरता है उसी टाइम जब नेहा ये बात बोल रही होती है, और उस आवाज को सुन के नेहा क्या करती है? स्माइल करती है. नाउ व्हाट इज दैट? क्या गिरा? क्या गिरा जिसको देख के नेहा ने स्माइल किया सुन के? Alarm clock. Alarm clock. Alarm clock. ऑलराइट, सो अलार्म क्लॉक गिर गई. अब बहुत खुश है. क्यों? क्योंकि अभी गिर गई. Alarm clock. और कल ये, प्लीज बेटे, यू आर डिस्टर्बिंग द होल क्लास. Okay, if you want to write any answer, write that in the chat box. ठीक है? Unless I asked you to unmute yourself, please don't unmute yourself. So नेहा ने जब वो क्लॉक के गिरने की आवाज सुनी तो वो खुश हो गई क्योंकि उसे पता है कि अब क्या हो गया, अलार्म क्लॉक कल नहीं बजेगी. राइट? ओके, नाउ अब नेहा क्या कह रही है? ओह, माय क्लॉक हैज फॉलन. हाउ हैप्पी आई एम. टुमारो आई कैन गेट अप लेट. तो कह रही है, ओह मेरी क्लॉक गिर गई, मैं कितनी खुश हूँ कि ये गिर गई है और कल मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा. मैं आराम से उठूंगी, अलार्म क्लॉक बजेगी नहीं और मैं उठूंगी नहीं. अब नरेटर क्या कह रहा है? नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म. ऑफ कोर्स वो टूट गई अलार्म क्लॉक. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब 6 o'clock हुए कोई अलार्म नहीं बजा. सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. तो नेहा सोती रही आराम से, मजे से. द स्मॉल चर्पी बर्ड्स विच come to the window sill every morning find Neha still sleeping. अब वो तो सो रही है क्योंकि अलार्म क्लॉक नहीं बजा, लेकिन थोड़ी देर बाद चर्पी बर्ड्स मीन्स चर्प चर्प करने वाले बर्ड्स वहां पे आए उसके रूम में. और उसकी विंडो सिल क्या होती है? इफ यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, जो बर्ड्स जहाँ पे बैठे हुए हैं विंडो का ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं विंडो सिल. राइट? सो जो बर्ड्स थे, चर्पी बर्ड्स, वो वहां आए और विंडो सिल पे बैठ गए. और जब उन्होंने वहां के देखा तो उन्होंने देखा कि नेहा तो अभी तक सो रही है, नेहा उठी नहीं है. अब बर्ड्स क्या कह रहे हैं? बर्ड्स का डायलॉग है नेक्स्ट. बर्ड्स कह रहे हैं, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. अब आज अलार्म ने नहीं उठाया उसको, लेकिन कौन आ गया उसको उठाने के लिए? बर्ड्स आ गए. और बर्ड्स ने कहा कि उठो उठो, जल्दी करो, लेट हो जाओगे. नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. व्हाट इज विद अ स्टार्ट? Can anybody tell me? Arnav, can you tell me what is with the start? Ma'am, when the birds chirp in the morning, Neha wakes up with the start. Ma'am की नेहा उठ के, मैम दोबारा, मैम नेहा. Alright, I'll explain. Mute yourself. So वो कह रहा है कि नेहा gets up with the start. With the start means एकदम से शॉक होके आपको कहीं जाना है, ठीक है, और आपको लगता है कि ओह मैं तो भूल ही गया. तो वो एकदम से जब आप शॉक्ड हो जाते हो वो होता है विद द स्टार्ट. ठीक है? तो नेहा एकदम से उठी, ठीक है, शॉक होके. अब नेहा ने क्या कहा? ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. उसने कहा कि आज अलार्म क्लॉक नहीं बजी है तो आज ये बर्ड्स आ गए हैं. ओफो, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन? मैम केला छोड़ दो. मैम केला छोड़ दो. हाँ जी मैम. ओके बेटे, दिस इज नॉट द वे. आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस. Yes, the child with the name Real Me. Beta, why you have not renamed yourself? What is your name? Real Me X. Unmute yourself. Ma'am, Himanshu Singh. Himanshu, first of all, rename yourself and please set your camera properly. Right? Now tell me the answer. What does it mean? Why don't they leave me alone? No. Sukhmani. Okay, Sukhmani. मैम जब कोई अकेला होता है. Okay, why don't they leave me alone? कई बार हम इरिटेट होते हैं, हम दुखी होते हैं और कोई आके हमसे पूछता है हो क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, तो हम क्या कहते हैं? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, है ना? बोलते हैं ना मुझे अकेला छोड़ दो. जब आप अपसेट होते हैं किसी चीज को लेके तो आप नहीं चाहते कि आपसे कोई बात करे, आपको कोई डिस्टर्ब करे.
ठीक है, तो इसीलिए नेहा ने भी कहा व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन, कि मुझे क्यों नहीं अकेला छोड़ देते, अब मेरे पास आ गए हैं सारे बर्ड्स और मुझे उठाने लग गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू। अब नेहा ने ये जो नई विश की, जो नई उसकी इच्छा थी कि बर्ड्स भी मुझे तंग ना करें, ये भी क्या हो गई, सच हो गई। कम्स ट्रू का मतलब ये भी सच हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स इधर। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो ना ही अलार्म क्लॉक बजा, ना ही बर्ड्स थे। वाई, कहाँ गए बर्ड्स? But there is someone else who doesn't want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. अब नेक्स्ट मॉर्निंग ना अलार्म क्लॉक बजी, ना ही बर्ड्स उसको उठाने आए, लेकिन अब कोई और नया पर्सन था जो उसको उठाने आया। एंड हु वाज इट? इट वाज द सन। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? मॉर्निंग में सन आया, और आपने देखा जब सन मॉर्निंग होती है आपकी विंडोज में से कैसे लाइट अंदर आती है, और अगर आप सो रहे हो तो आपकी आईज सोते सोते भी आपकी आईज में लगता है कि सन की लाइट पड़ रही है ना, एंड देन यू कवर योर आईज विद समथिंग ताकि सन की लाइट आपकी आईज में नहीं जाए। ठीक है, तो थर्ड डे क्या हुआ, उसकी आईज किससे, मैम, विद द सनलाइट। यस मैम, यस 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 बेटे। Okay, let us come to next page number 8. Neha. अब नेहा क्या कहती? Oh my eyes. Now it's the sun waking me up. Why can't he let me be? अब वो कहता हो मेरी आईज, आईज को क्या हुआ, उसकी आईज में सन की लाइट जा रही थी और उसकी नींद खराब हो रही थी, she was getting disturbed. उसने कहा अब ये सन आ गया मुझे उठाने के लिए, now it's the sun waking me up. Why can't he let me be? कह रही कि क्यों नहीं मुझे छोड़ रहे हैं अकेला। Okay, next. इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। अब नेक्स्ट डे नेहा की ये वाली विश भी पूरी होगी। कौन सी विश? कि सन उसको डिस्टर्ब नहीं करे। ये विश भी कैसे पूरी हुई उसकी? नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सो नेहा स्नोज टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग सन कहाँ चला गया? सन कहीं जाता है कभी? नहीं, सन क्लाउड्स के पीछे चला गया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुई तो क्लाउडी डे था। क्लाउडी डे वाले दिन क्या होता है? सन क्लाउड्स के पीछे हाइड हो जाता है, छुप जाता है, तो सन की जो लाइट है वो उतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती है और वो रूम के अंदर उतनी शार्पली नहीं आती है। तो नेक्स्ट डे नेहा को ना अलार्म क्लॉक ने उठाया, ना बर्ड्स ने उठाया, ना उसको सन ने उठाया। ठीक है, बट अब और वो शी स्नोर्स टिल शी हियर्स। स्नोर करना क्या होता है? स्नोर करना क्या होता है? मैम खराटे लेना। Suzanne will tell Suzanne, what is snoring? मैम टू स्लीप नॉइजली। Noisily. अब हिंदी में बताओगे मुझे इसे क्या कहते हैं? It is a very interesting word. मैम खराटे लेना। खराटे लेना, yes मृदुल, yes very good. तो अब वो बड़ी देर तक खराटे लेती रही। अब खराटे आप कब लेते हैं? When do you snore? जब आप बहुत साउंड स्लीप ले रहे हैं, बड़ी अच्छी नींद आ रही है ना आपको और आप बहुत टायर्ड होते हैं, यूजुअली आप तब स्नोरिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंकि उसको किसी ने भी नहीं उठाया तो वो बड़ी देर तक आराम से खराटे लेती रही, सोती रही। तो उसकी मम्मा आई और उसकी मम्मा की वॉइस से अब उसकी किसकी वॉइस आई? मम्मा की वॉइस आई। यस मैम, यस यस मैम, बेटे मैम नहीं कह रही, बोलिए प्लीज। डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन नाउ। ओके, नाउ मदर ने उसको क्या बोला? प्लीज लुक इन बुक्स। मदर सेड वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। व्हाट इज स्लीपी हेड? What is the meaning of the word sleepy head? Himank will tell me. Himank, what is sleepy head? Do you know? मैम स्लीपी हेड मीन्स है ना रोज सोते रहना, रोज सोती। Lazy person is called sleepy head. So आपको एक नया वर्ड पता चल गया, लेजी वर्ड होता है स्लीपी हेड। ठीक है, जो पर्सन अब आपके घर में कोई लेजी होगा ना तो आपको लेजी की जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हो उसके लिए? स्लीपी हेड बोल के बुलाना। ठीक है उसको। ओके, सो उसकी मम्मा ने कहा वेक अप स्लीपी हेड। उसकी मम्मा ने कहा कि इतनी लेजी हो तुम, उठ जाओ, यू विल मिस द बस, कि तुम बस मिस करने वाली हो। कौन सी बस? कौन सी बस मिस होगी उसकी? राइट डाउन द आंसर इन द चैट बॉक्स ओनली, आई विल एक्सेप्ट दैट। कौन सी बस मिस होने वाली है? इज शी गोइंग समवेयर? मैम स्कूल बस। स्कूल बस, यस ऑफ कोर्स, उसकी स्कूल बस मिस हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्कूल बस।
School bus. Neha, what does Neha say now? Oh no, why does mother have to wake me up? अब नेहा कह रही हो मम्मा को मुझे रोज उठाना क्यों होता है? आप लोग भी ऐसे बोलते हो ना मॉर्निंग में जब मम्मा उठाती है, मम्मा प्लीज सोने दो, थोड़ी देर और सोने दो. सो अब नेहा भी कह रही है कि क्या है मम्मा को मुझे रोज क्यों उठाना होता है? Yes, let us move further. There is no escape now. अब वो कह रही हो अब तो बचने का कोई तरीका नहीं है. Can anybody tell me the meaning of the word escape here? Escape. मैम Arnav, मैम द मीनिंग rest of मैम बचना इनसे मतलब नहीं निकलना. yes, yes. Escape means अपने आप को किसी से बचा लेना, किसी सिचुएशन से बचा के बाहर निकालना या किसी पर्सन से बचाना. So that is called escape. Okay, so अब नेहा क्या कह रही है? There is no escape now. अब तो बचने का कोई सीन ही नहीं है. अब तो मुझे उठना ही पड़ेगा. Why? Because मम्मा आ गई है मुझको उठाने के लिए. नेहा gets up and gets ready. नेहा उठती है और रेडी हो जाती है. Can you imagine what happens the next day? आप सोच सकते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा? नेहा wakes up. नेहा एकदम से खुद ही उठ जाती है, उसको कोई नहीं उठाता, लेकिन वो खुद ही एकदम से उठती है. Her watch says it is 6 o'clock और अपने वॉच में जब वो टाइम देखती है तो क्या टाइम होता है? 6 o'clock. She calls out to her mother और वो अपनी मम्मा को बुलाती है. वो बड़ी हैरान होती है कि आज तो मेरे को ना सन ने उठाया, ना बोस ने उठाया, ना मॉम क्लॉक ने उठाया, ना मम्मा ने उठाया, तो आज मैं अपने आप कैसे उठ गई 6 o'clock? तो वो अपनी मम्मा को बुलाती है. And she asks her mama, माँ, who woke me up today? मम्मा मुझे आज किसने उठाया? उसने अपनी मम्मा से पूछती है. Now mother smiles. उसकी मम्मा हंसती हैं उसकी बात सुन के और क्या कहती हैं? Who else? You of course. किसी ने तुम्हें नहीं उठाया. तुम्हें किसने उठाया है? तुमने खुद अपने आप को उठाया है. खुद कैसे उठा लिया उसने अपने आप को? Let us see. But I was sleeping. How could I? नेहा कह रही, but मैं तो सो रही थी. जब मैं सो रही हूँ तो मैं खुद को कैसे उठा सकती हूँ? मदर क्या कह रही है? Now tell me, why do you eat your lunch every day at 1 in the afternoon? अब मदर कह रही है कि अच्छा मुझे बताओ कि जब आप रोज 1 o'clock पे लंच क्यों करती हो? तो नेहा कहती है बिकॉज आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे 1 o'clock भूख लग जाती है रोज, इसलिए 1 o'clock लंच करती हूँ. सो मदर सेज व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? और रात को 9 o'clock तुम्हें नींद क्यों आ जाती है? 9 o'clock क्यों सो जाती हो तुम? बिकॉज आई फील स्लीपी. नेहा कह रही है मुझे नींद आती है 9 o'clock, मैं सो जाती हूँ. तन्मय, mute yourself बेटे, you are unmuted. Okay. Now mother says there is a clock inside which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. आप इमेजिन कर सकते हो आपके अंदर कोई क्लॉक होगी? होती है कोई क्लॉक? Yes, there is. Actual वो वाली क्लॉक नहीं होती है जो Our brain. but there is a. Our brain. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हाँ, देयर इज अ क्लॉक इन योर माइंड. एक्चुअल में हम जब कुछ प्लान करते हैं, आई गिव यू एन एग्जांपल. अगर मैं रात को सोचती हूँ ना कि मुझे 5 o'clock उठना है, ठीक है, तो मैं 5 o'clock से 5 minutes पहले उठ जाती हूँ. व्हाई? बिकॉज वो जो मेरे माइंड में एक क्लॉक है, उसने उसमें अलार्म सेट कर दिया कि मैंने 5 o'clock उठना है. आप ये ट्राई करना आज रात को ना, सोच के सोना कि मैंने 6 o'clock उठना है मॉर्निंग में. ठीक है, रिपीट दिस थिंग टू योरसेल्फ 2-3 times कि मुझे उठना है. एंड नेचुरली आपकी 6 o'clock एक बार नींद जरूर खुलेगी. सो देयर इज अ क्लॉक इनसाइड आवर माइंड. ठीक है, हमारे माइंड के अंदर एक क्लॉक होती है जो एक टाइम फिक्स कर देती है किसी भी चीज का. जब हम उस काम को रोज रूटीन में उसी टाइम पे करते हैं, जैसे सपोज अगर मैं 2 o'clock लंच करती हूँ, मैं 1 week तक रोज 2 o'clock डॉट खाना खाती हूँ, तो 7th डे जब नेक्स्ट डे आएगा तो मुझे ऑटोमेटिकली 2 o'clock भूख लगने लग जाएगी. So there is a clock which tells us when to eat, when to sleep and when to get up. So आप अपनी रूटीन जैसे बना लोगे, जो टाइम हर एक चीज के लिए अपनी लाइफ में फिक्स कर लोगे, ऑटोमेटिकली आप उस काम को कर पाएंगे उस टाइम पे. राइट? तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है, अलार्म क्लॉक कोई और अलार्म क्लॉक नहीं होती है, हमारे माइंड के अंदर एक क्लॉक होती है. राइट? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, नाउ नेहा क्या कह रही है? ओह आई बेटर रश नाउ. रश को अंडरलाइन करेंगे. रश का मीनिंग है हरी अप. Hurry up, HURRYUP. Hurry is a different word, up is a different word. So नेहा कह रही है कि I better rush now, कि अब मैं बहुत देर हो गया, मुझे जल्दी करनी चाहिए. किस लिए? कि मुझे रेडी होना है. I don't want to miss the bus. नेहा ने कहा मेरे को बस मिस नहीं करनी है, मेरे को जल्दी रेडी होना पड़ेगा. तो मदर क्या कह रही है? मदर कह रही है रिलैक्स. Today is what?
टुडे इज संडे। तो मम्मा कह रही है कि ओ संडे मैम, संडे मैम बेटे डोंट अनम्यूट। यस, तो मदर कह रही है कि आज कोई जल्दी नहीं क्योंकि आज संडे है। सो नेहा सेज ओह ओह ओह, एंड आई टेल यू आप सेम थिंग हैपेंस विद अस आल्सो। अगर मैं रोज 5 o'clock उठती हूँ ना, तो संडे को मुझे पता है मैंने नहीं जाना स्कूल, बट एक बार मेरी 5 o'clock नींद जरूर खुलती है। देन आई लुक एट द टाइम 5 o'clock में, फिर मेरे को याद आता है आज तो संडे है, देन आई अगेन गो टू स्लीप। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ क्लॉक, दिस इज काइंड ऑफ एन अलार्म क्लॉक दैट गोज इन योर माइंड, विच रिमाइंड्स यू टू डू एवरीथिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। हर एक काम आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसे कर लेते हो, क्योंकि वो आपके माइंड में अलार्म क्लॉक सेट हुआ होता है। Is it clear? Is the chapter clear to everybody? Yes, ma'am. All right, now listen to me very carefully. Mute yourself. yes ma'am Mute yourself and listen to me. Now, what you have to do today, please mark the questions that you have to do today in the book. The back exercises.